गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत। नाइस प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंत्री विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्य गुरु आज के इस हिंदी विषय के प्रस्तुत लेक्चर में आप सभी छात्रों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सभी छात्र साथ मिलकर के इतनी शक्ति हमें देने दाता प्रार्थना काव्य है, उसका हम अभ्यास करेंगे। प्रार्थना काव्य किसी भी कार्य का शुभारंभ, शुभ शुरुआत ईश्वर के गुणगान के साथ हो। भगवान के गुणगान के साथ कोई भी काम हम यदि शुरू करते हैं तो उसमें हमें हर हमेशा सफलता की ही प्राप्ति होती है। सुबह उठकर प्रातः स्मरण परमात्मा का यदि हम करते हैं तो हमारा पूरा दिन खुशियों से भर जाता है। और शाम के वक्त सोते वक्त जब हम अपने बिस्तर पर सोने जाए उससे पहले भी एक बार ईश्वर को दिल से याद करके उनके प्रार्थना के शब्द लफ्ज यदि हम बोलते हैं तो सुकून के साथ सोते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु और विद्या, धन, संपत्ति, बुद्धि, कुल, गुण, रूप की प्राप्ति जो है वह हमें होती है। तो ये है हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व। गांधी जी ने तो कहा था प्रार्थना आत्मा की खुराक है। हमारे देह रूपी मंदिर में, हमारे शरीर में आत्मा नाम का एक तत्व जो है वह रहता है जिसे साया कहते हैं। और उसे यदि भूख लगती है, उसे कुछ खुराक चाहिए, तो यदि प्रार्थना उसे हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को खुराक की प्राप्ति जो है वह होती है। गुजराती साहित्य में एक जगह मैंने पढ़ा है कि ગુજરાતીમાં જ હવે વાત કરું કે ભોજનમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રસાદ થાય છે। સાંભળજો મિત્રો, ભોજનમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રસાદ થાય છે, મુસાફરીમાં ભક્તિ ભળે તો યાત્રા થાય છે। જો ઉદાહરણ સાથે સમજો, આપણા ઘરે 5 મહેમાન આવ્યા હોય અને રવાનો શીરો બનાવવામાં આવે, એનો એ બનાવવા વાળા એને એ વ્યક્તિ, મમ્મી કે કોઈ જે તે XYZ વ્યક્તિ હોય તે, એનો એ ચૂલો, એની એ તપેલી, એનો એ રવો, એટલી જ ખાંડ, એટલું જ ઘી નાખી અને 5 મહેમાન આવ્યા અને 25 જણા માટે રવો બનાવ્યો અને મહેમાન સાથે બપોરે પંગતમાં ડાઇનિંગ ટેબલ પર જ્યાં આપની અનુકૂળતા હોય ત્યાં જમવા બેસીએ અને એ જે શીરામાં મીઠાશ આવશે એનું તત્વ થોડું ઓછું હશે અને એના બદલે એનું એ બનાવવા વાળી વ્યક્તિ, એની એ તપેલી, એનો એ રવો, એની એ ખાંડ, એનું એ ઘી અને એમાંથી શીરો બનાવવામાં આવે અને ઘરે સરસ મજાની ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા કરવામાં આવે અને કથાના અંતે શીરો ભગવાનની સામે પ્રસાદના રૂપમાં ધરવામાં આવે અને ઈશ્વરના સરસ મજાની એમ કહેવાય કે દેશના કોઈ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ દ્વારા ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનો થાળ કરવામાં આવે અને બાદમાં એ શીરો બધાને જે છે એ આપવામાં આવે અને ભગવાનને ધરેલો શીરો જ્યારે આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે ઘરે આવ્યા મહેમાન અને જે શીરો બનાવ્યો અને ખાધો તો એ શીરા કરતાં એ શીરાની મીઠાશ આપણને વધારે લાગશે। કેમ? તો કે એમાં ભક્તિનું તત્વ મિત્રો ઉમેરાઈ ગયું। એટલે કીધું ભોજનમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રસાદ થાય અને મુસાફરીમાં ભક્તિ ભળે તો યાત્રા થાય। આખો દિવસ, આખા વર્ષમાં કેટલી જગ્યાએ આપણે હરતા ફરતા હોઈએ છીએ, મુસાફરી કરતા હોઈએ છીએ, પણ માનો કે આપણી આ મુસાફરી છે કદાચ મહાદેવ સોમનાથ સુધીની। પ્રથમ સોમનાથ આપણું જ્યોતિર્લિંગ, કોઈ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ કોઈ હોય, દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગોનું તો માનો કે સોમનાથ છે આપણા સૌરાષ્ટ્રની શોભા અને આભા ગણી શકાય। સોમનાથ જઈએ છીએ કે માનો કે દ્વારિકા જઈ રહ્યા છીએ અને દ્વારિકા એટલે માંગો 20 આપે 30, બોલો જય દ્વારકાધીશ। એ દ્વારિકા આપણે જઈ રહ્યા છીએ તો એ દ્વારિકા જઈ રહ્યા હોય કે આપણી શક્તિપીઠ માં અંબાજીના ચરણ પખાળવા માટે માં અંબા શક્તિનું જ્યાં હૃદય પડેલું છે તે અંબાજી આપણે જઈ રહ્યા છીએ તો એ મુસાફરી જ કરી રહ્યા છીએ પણ તેમાં ભક્તિનું તત્વ ઉમેરાણું તો મિત્રો શું બની ગયું? તો કે યાત્રા બની ગઈ। ભોજનમાં ભક્તિ ભળે તો પ્રસાદ થાય છે, મુસાફરીમાં ભક્તિ ભળે તો યાત્રા થાય છે, પણ જ્યારે શબ્દોમાં ભક્તિ ભળે છે ત્યારે શું થાય છે? પ્રાર્થના થાય છે।
જ્યારે શબ્દોમાં ભગવાનના ગુણગાનની વાત કરવામાં આવે, મનુષ્યના એમ કહેવાય કે માનવતા પરમો ધર્મની જેમાં વાત કરવામાં આવે, વસુદેવ કુટુંબકમની જેમાં વાત કરવામાં આવે, આવા અનેક દિવ્ય ભવ્ય ભાવો જે શબ્દોમાં ઉમેરાય અને બનતું રચના, બનતું વિધાન એટલે પ્રાર્થના કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આ સરસ મજાનું પ્રાર્થના કાવ્ય આપવામાં આવ્યું છે. इतनी शक्ति हमें दे दाता. गुजराती में गुजराती की बात उदाहरण के साथ मैंने आपको कविताओं की बात जो है वो बताई. अब आइए सभी साथ मिलकर के प्रस्तुत प्रार्थना काव्य इतनी शक्ति हमें देन दाता काव्य का हम अभ्यास करें. लेकिन उससे पहले अभिलाष द्वारा रचित यह सुंदर सा प्रार्थना काव्य है और प्रस्तुत प्रार्थना काव्य की समझ के लिए एक ब्रैकेट में लाइन जो है वो 2-3 लाइन दी गई हुई है. आइए सबसे पहले उसकी बात कर ले. यह एक प्रार्थना काव्य है. काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो. कि यह एक सुंदर सा प्रार्थना काव्य है और प्रस्तुत प्रथम काव्य में ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना की गई हुई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कभी भूल ना हो, सबका जीवन उदात्त बने, ऐसी मंगल कामना की गई हुई है. उदात्त यानी भव्य, दिव्यताओं के साथ जिस भव्यता की प्राप्ति हो उसे कहा जाता है उदात्त. तो यहाँ पर काव्य में सबका जीवन जो है वह भव्य बने ऐसी मंगल कामना है. किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई हुई है. कि किसी के भी प्रति कभी भी बैर की भावना, किसी का बुरा करना, यह भावना जो है वह किसी के भी मन में न जन्मे और सबका जीवन मधुबन सा सुंदर बन जाए, ऐसी मंगल कामना जो है वह प्रस्तुत प्रार्थना काव्य में की गई हुई है. आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत इतनी शक्ति हमें देन दाता काव्य का अभ्यास करें. लेकिन उससे पहले हमारी पाठशाला में जब सुबह सुबह प्रार्थना होती है, असेंबली होती है, तब हमारे साथी शिक्षक मित्र शरद भाई और मिलन भाई के द्वारा सुंदर से प्रार्थनाओं का जो है वह गान किया जाता है. उसमें कई बार हम लोग ये प्रार्थना भी गाते हैं. लेकिन आज हमें प्रस्तुत प्रार्थना को समझना है, प्रत्येक शब्दों को समझना है, प्रार्थना को पूर्ण रूप से सीखना है और आगे चलकर परीक्षा में, इम्तिहान में इनके साथ जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाए तो उसके उत्तर भी हमें लिखने हैं. लेकिन उत्तर लिखकर प्रार्थना भूल जाए ऐसी बात नहीं है. तो प्रार्थना के प्रत्येक शब्दों को, प्रत्येक भावों को हम अपने हृदय में उतारे, हम अपने जीवन में उतारे और हम अपने जीवन को संवारे. यह नेक आशय के साथ यह विषयांक जो है उसे हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले प्रार्थना का एक बार गान करेंगे और प्रार्थना के गान के बाद प्रार्थना के शब्दों को हम समझेंगे. तो सभी छात्र अपनी किताब में पेज नंबर 1 पर दी गई हुई प्रार्थना इतनी शक्ति हमें देन दाता, आइए साथ मिलकर के गाते हैं. मैं यहाँ से गान करता हूँ, आप सभी छात्र अपने किताब में देखकर मेरे साथ साथ इस राग के साथ, इस आलाप के साथ सुंदर सी प्रार्थना का गान करते हैं. तो सभी छात्र का ध्यान किताब में, हृदय के भाव जो है वह खुले रखे और शब्दों को समझे और साथ मिलकर के आइए गान करते हैं. इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी
की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। आ रीते आवा भाव साथे प्रार्थनाનું આપણે ગાન કર્યું। દરેક વિદ્યાર્થીને આશા કરું છું કે આ કાવ્યનું ગાન પ્રાર્થના જે છે એ સાંભળવાની મજા આવી છે। તમે પણ મારી સાથે કાવ્યનું પ્રાર્થનાનું ગાન કર્યું છે। लेकिन आइए अब हिंदी में बात करते हैं। प्रस्तुत सुंदर सी इस प्रार्थना काव्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। सभी छात्र पेज नंबर 1 पर दी गई प्रार्थना की प्रथम पंक्तियों में आइए देखते हैं। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बड़े सुंदर से अल्फाजों के साथ, लफ्जों के साथ, शब्दों के साथ बड़ी सुंदर बात जो है वह प्रार्थना में कही गई हुई है। एक शब्द है, आइए साथ मिलकर के कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। जिन शब्दों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, आप सभी छात्र मेरे साथ साथ ये शब्द लिखते रहिए, जिनसे काव्य की समझ में आप लोगों को सरलता रहेगी। दाता, तो प्रस्तुत दाता शब्द का अर्थ क्या होगा? तो दाता यानी ईश्वर अथवा परमात्मा।
ईश्वर अथवा परमात्मा अथवा भगवान जिसे हम कहते हैं अर्थ होता है उसका काव्य में दाता। तो इतनी शक्ति है परमात्मा, है भगवान, आप हमें इतनी शक्ति दीजिए जिस शक्ति के बल पर चलकर हम मन के विश्वास को कभी कहीं खो न दे और हमारा जो मन है और मन के हम मक्कम बने और दृढ़ निर्धारों के साथ, दृढ़ संकल्पों के साथ, शुभ आशय के साथ, मंगल भावनाओं के साथ, विश्वास को खोए बगैर हम जो है वह कमजोर हुए बगैर जो है वह अपना जीवन जिए और हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम कैसे रास्ते पर चले? नेक रास्ते पर। नेक यानी कैसा? ईमानदारी का जो रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उस पथ पर हम चले और जिससे कि हम अपने जीवन में कभी भूल कर भी कोई भूल जो है वह ना कर बैठे। एक तो शब्द है समानार्थी शब्द में, शब्दार्थ में लिखते हैं नेक। नेक यानी कैसा? ईमानदारी। नेकी तो ईमानदारी, नेक तो होता है ईमानदार। तो हम जो है वह ईमानदारी के, सच्चाई के, सत्य के पथ पर चले और जिस पथ पर चलकर हम कभी भूल कर भी, भूल से भी हम कोई भूल, कोई अपराध, कोई पाप, कोई गुनाह हे परमात्मा न करे, इतनी आप हमें शक्ति दीजिए। आगे की पंक्तियों में देखिए, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। अज्ञान के अंधकार से हे परमात्मा, हे पालनहार, हे सृजनहार, हे भगवान, हे ईश्वर, आप हमें, हम जो है मान लीजिए कि यदि अज्ञान के अंधकार में हमारा जीवन जो है वह जी रहे हैं, तो हे भगवान आप आइए और हमारे जीवन के अज्ञान के अंधेरे को आप हरे और आप हमें ज्ञान की नई रोशनी दे। ज्ञान के प्रकाश के साथ हमारा जीवन जो है वह आप भगवान भर दो। और आगे कहा, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हम जो है सभी प्रकार की बुराइयों से बचकर के ही अपना जीवन जो है वह जिए और जितनी भी दे आपकी द्वारा ही, आपकी कृपा से ही है परमात्मा यह मनुष्य जीवन और यह मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है और हम जो है अपने इस जीवन में सभी प्रकार की बुराइयों से बचकर के ही अपना जीवन जो है वह जी सके, उतना ही आप हमें जीवन जो है वह दीजिए, उतनी ही जिंदगी आप हमें दीजिए। आगे कहा है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम कभी भी समाज में, परिवार में, पड़ोस में, गांव में, शहर में, राज्य में, देश में, दुनिया में कभी भी किसी के साथ किसी का भी बैर ना हो और बैर की भावना रहित मानव बने और जिससे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। और कभी मान लीजिए कि किसी के साथ हमने बैर कर लिया, किसी ने हमारा बुरा किया और हम उसका बुरा करने की कामना यदि कर रहे हैं, तो ऐसी कामना दूसरों की बुराई करने की, दूसरों के साथ बैर लेने की जो भावना हमारे हृदय से जागृत हुई है, उठी है, उस भावना जो है वह कभी भी किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से हमारे हृदय में ऐसी भावना कभी जन्मे ही, जागृत ही न हो। ऐसी कृपा परमात्मा आप हम पर करें। आगे देखिए, पीछे पन्ना पलटिए, दूसरे पेज पर दी गई सुंदर सी बात, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। अर्पण यानी क्या? यहां पर लिखते हैं साथ में,
अर्पण का अर्थ होता है संपूर्ण शरणागति का भाव, जिसे कहा जाता है समर्पण, त्याग जिसे कहते हैं। बड़े महान ये सारे शब्द है अर्पण। काव्य में कवि कहते हैं हम न सोचे हमें क्या मिला है। हम अपने जीवन में कभी भी परमात्मा के पास, अपने परिवार के पास, अपने माता पिता के साथ कभी यह नहीं हम सोचे कि हमें क्या, आपसे हमें क्या मिला है, लेकिन हम यह सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है, परिवार को क्या दिया है, माता पिता को क्या दिया है, अपने शहर को क्या दिया है, अपने देश को क्या दिया है, अपने राष्ट्र को क्या दिया है। यह अर्पण, समर्पण की भावना जो है वह हम हर हमेश उसके बारे में ही सोचे। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम जो है वह अपनी झोली में खुशियों के फूल लेकर के बांटने के लिए जो है वह चलते हैं, और यदि हम खुशियां जो है वह बांटेंगे तो चारों ओर जो है वह सभी चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी, और सभी चेहरों पर आई हुई मुस्कान की वजह से चारों ओर जो है वह सुख, समृद्धि और शांति की ही जो है वह छाया फैल जाएगी। इसीलिए काव्य में कवि कहते हैं फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, कि सबका जीवन मधुबन जैसा। मधुबन शब्द आइए साथ मिलकर के समानार्थी शब्द में लिखते हैं। उपवन या बगीचा जिसे हम कहते हैं, कि हम इतनी खुशियों के फूलों को लेकर के हम बांटने के लिए निकलते हैं कि हमारे जो सभी है, सभी का जीवन जो है वह मधुवन जैसा, उपवन जैसा, बगिया जैसा, बाग के जैसा सुंदर जो है वह भर जाए, और खुशियों से ही भर जाए। और कहा जाए तो कि दुख जो है वह बांटने से कम होता है। दुख हर हमेशा अपने जीवन में आए हुए दुख को यदि हम बांटेंगे तो दुख कम होगा, और अपने जीवन में आए हुए सुख को भी हम यदि बांटेंगे तो दुख जो है वह तो बढ़ेगा। सुख और दुख को बांटने से, परस्पर में बांटने से जो है वह हमारे जीवन में सुख दुखों को बांटने से एक समानता, एक समता जो है वह जीवन में जो है वह बनी रहती है। जीवन में तो सुख और दुख तो आता ही रहता है और जाता ही रहता है, लेकिन उसमें भी हम समर्पण के भाव के साथ, खुशियों के साथ सुख को और दुख को आए हुए उत्सव के रूप में यदि हम अपने जीवन को मनाने लगे तो मधुवन जैसा सुंदर खुशियों से हमारा जीवन जो है वह भर जाएगा। और आगे कहा है अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। ईश्वर जो है वह तो सत्य प्रेम करुणा के द्योतक है, सर्जक है, सत्य प्रेम करुणा के दाता है। परमात्मा जो है वह सत्य प्रेम और करुणा की मूर्ति है। तो यहाँ पर काव्य में कवि कहते हैं कि अपनी करुणा का जल परमात्मा आप बहाओ, और बहाए गए, आपके द्वारा बहाए गए करुणा के जल से ही यदि मान लीजिए कि हमारे जीवन में कहीं पर भी पाप है, कहीं पर भी बुराई है, कहीं पर काम क्रोध वासना के भाव, बुरे भाव, बुराई का भाव हमारे भीतर में यदि कहीं कुछ भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो परमात्मा आप जो है वह करुणा की धाराओं को बहाते हुए हमारे जीवन में आए और हमारे सभी के जीवन को, हम सभी के जीवन को पावन कर दे। पावन करे यानी क्या? तो क्या अर्थ होता है पवित्र। ईश्वर आप अपनी करुणा के जल को बहाकर हम सभी का जीवन जो है वह पवित्र बना दो, पावन बना दो, और हम जो है वह सभी प्रकार के बोझ से, सभी प्रकार के पापों से हम मुक्त हो। और आगे कहा है हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम मान लीजिए कि बुराई के मार्ग पर हम चलने लगे, और बुराई तो बरसों बरसों से चल रही है। महाभारत के युद्ध में
कुरुक्षेत्र के रण मैदान में एक और कौरवों की सेना है, एक और पांडवों की सेना है, और पांडवों की सेना में भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान जो है वह अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, और अर्जुन जो है वह अपना गांडी उठा नहीं रहा। तब परमात्मा ने विराट रूप धारण किया और महाभारत के बीच से हमें श्रीमद् भगवद गीता नाम का एक बड़ा अद्भुत, अलौकिक, सुंदर, अद्भुत धर्म ग्रंथ जो है वह प्राप्त हुआ। और उसमें भगवान ने जो है वह उन दिनों में, बरसों पहले परमात्मा ने ही कहा था भगवद गीता में, द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्तम पार्थ आसुरी संपदम में शृणु, के प्रस्तुत धरती पर दो प्रकार के प्राणी की सृष्टि जो है वह धरती पर बसती है। एक देवी संपत्ति वाली बस्ती और दूसरी आसुरी संपत्ति वाली बस्ती। और हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम अपने जन्म के साथ देवी संपत्ति के साथ तुमने जन्म धारण किया है, इसलिए तू किसी भी प्रकार का शोक न कर, किसी भी प्रकार का हर्ष न कर। क्यों? क्योंकि तेरा भूतकाल क्या है, तेरा वर्तमान क्या है और तेरा आने वाला भविष्य क्या है, इनमें से कोई नहीं जानता, मात्र और मात्र मैं ही जानता। तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप धारण करके अर्जुन को कहा था। और उन दिनों में दुश्मनी के भाव जो है वह आसुरी संपत्ति वाले लोग जो है वह रखते हैं, ऐसी बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कही थी। आज के जमाने में हम तो क्या, हम अंधेरे में है, रोशनी दे है परमात्मा, है भगवान। हम ज्ञान के अंधेरे में हमारा जीवन जो है वह जी रहे हैं, तो हम खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम आपस में परस्पर में हम दुश्मनी रखें और दूसरों के साथ कुछ बुराई करना यदि हम सोचते हैं तो वह हमारा दुश्मनी का ही भाव जो है वह कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ उसी के हिसाब के साथ उसी के जैसा ही उसके साथ करूंगा। यह जो कामना, यह जो भावना है वह दुश्मनी की भावना है। और ये भावना हमें छोटे से लेकर जब बड़े बुजुर्ग बने तब तक कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की दुश्मनी की भावना किसी के भी साथ हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए काव्य में कवि ने कहा है, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। आपस में दुश्मनी का भाव रखकर, बीच में झगड़कर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को ही कहीं खो न दे, ऐसा भगवान आप जो है वह करे। हम सजा पाए अपने की एक ही, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हम यदि कुछ बुरा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो हम दूसरों के साथ बुराई करने से हम सजा पाए अपने किए गए बुरे कर्मों की। हे भगवान, आप हमें खुद को ही सजा दे। और मान लीजिए कि सजा के रूप में आप हमें मारना चाहते हैं। हे भगवान, हे दाता, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने यदि किसी का बुरा किया है और किए गए बुरे कर्मों के पाप की यदि सजा मिलती है तो केवल और केवल मुझे अकेले को ही यह सजा मिले। और यदि सजा के रूप में आप मुझे मौत देते हैं तो मौत की सजा को भी मैं हंसते मुख खुश होकर परमात्मा आपके द्वारा दिया गया मौत भी हम जो है वह खुशी से सहले। ऐसी कृपा परमात्मा आप करें। और आगे कहा है, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कि कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, गत दिनों में कल जो भूल की है, गुजरे हुए कल में जो पाप किए हैं, गुजरे हुए कल में यदि मैंने मन, कर्म और वचन से किसी को नुकसान पहुंचाया है तो हे भगवान माफी चाहता हूं। लेकिन गत कल में, गए गुजरे हुए कल में मैंने जो भूल की है, वह भूल जो है वह मैं कहीं आने वाले कल में, अपने भविष्य में परमात्मा में न कर दूं। ऐसी कृपा आप हम पर करें। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। भूतकाल के दिनों में की गई भूल, भूतकाल के दिनों में किया गया पाप, आने वाले भविष्य के दिनों में हे भगवान मैं न कर बैठूं। ऐसी कृपा आप परमात्मा मुझ पर बनाए रखे। और आगे कहते हैं काव्य के अंतिम मंत्र में, देखिए, हर तरफ जुल्म है बेबसी है,
सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ क्या है? आज जो है वह 21वीं सदी में ही हम गौर करके देखें तो चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है, जुल्म है, बेबसी, आतंकवाद का जुल्म चल रहा है। एक और कोरोना की वैक्सीन अभी मिल नहीं रही है। आदमी जो है वह बेबस हो गया है। बेबस यानी कैसा? तो क्या लाचार जिसे कहते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं, बेबसी यानी क्या? लाचारी जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है बेबसी। तो हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, चारों ओर आज धरती पर अफरा तफरी का माहौल है। वर्तमान पत्र हम पढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तब हमारा हृदय, हमारा दिल जो है वह एक आह के साथ धड़कता है। चंद क्षण के लिए हमारा हृदय जो है वह धड़कन चूक जाता है। क्यों? तो कि चारों ओर आज जुल्म और बेबसी की आंधी जो है वह चल रही है और सहमा सहमा सा हर आदमी है। सहमा सा यानी कैसा? डरा हुआ सा जिसे हम कहते हैं। सहमा सहमा सा हर आदमी है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक इंसान जो है वह आज डरा हुआ सा है और पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थी। आज चारों ओर पृथ्वी पर क्या है? तो कि पापी लोगों के जुल्म से, पापियों के अत्याचार से पृथ्वी पर जो है वह पाप का बोझ यानी वजन जिसे हम कहते हैं वह बढ़ता जा रहा है। न जाने कैसे ये धरती थमी हुई है। ये धरती जो है वह कैसे इस प्रकार से अवकाश में, ब्रह्मांड में टिकी हुई है वह नहीं मालूम पड़ रहा है। और बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। ममता का भाव यानी बच्चे के प्रति माँ को जो भाव होता है, जो दुलार होता है, लाड प्यार होता है, उसे कहा जाता है ममता का भाव। तो हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे दाता, हे अल्लाह, आप ममता के साथ ये पापियों के पापों से बढ़ते हुए बोझ को, भार को परमात्मा आप उठा लो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे द्वारा, परमात्मा आपके ही द्वारा बनाई गई प्रस्तुत सृष्टि का ही कहीं अंत न हो जाए। यह बात जो है वह अंत में परमात्मा को काव्य में जो है वह कवि कहते हैं। और बाद में आगे आता है, हम चले नेक रास्ते पे हम भूल कर भी कहीं भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आशा करता हूँ आपको काव्य का भावार्थ जो है वह समझ में आ गया होगा। काव्य का गान भी आप लोग जो है वह बार बार यदि करते रहेंगे तो काव्य की समझ भी आपको अच्छी रूप से, अच्छे तरीके से जो है वह तो मैंने दे दी है। लेकिन काव्य को बार बार पढ़ेंगे, काव्य का बार बार गान करेंगे, बार बार काव्य का आप जो है वह श्रवण करेंगे तो जिससे काव्य जो है वह याद रह जाएगा। और काव्य याद रह जाएगा और उससे हमारे भीतर में भव्य भावों की मंगल कामना जो है वह हर हमेश जीवंत रहेगी। और परीक्षा में भी कोई भी किसी भी रूप से किसी भी प्रकार का प्रश्न इतनी शक्ति हमें दे दाता काव्य का यदि पूछा जाता है तो उसके भी उत्तर हम अच्छे ढंग से, सही तरीके के साथ उत्तर जो है वह दे सकेंगे। इसी भावना के साथ काव्य जो है वह यहाँ पर आज पूर्ण करते हैं। दूसरे सत्र में आज के हमारे दूसरे विषयांग की ओर जो है वह हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भारत देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था वे पूज्य महात्मा गांधी जी और साथ ही में फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट, और उन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने देश में जिस प्रकार से, जिस हिसाब से महान थे, उन्हें लेकर
यहाँ पर सुंदर सा एक प्रसंग वर्णन जो है वह आपके अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। और आइए साथ मिलकर के दूसरे सत्र के इस दूसरे विषयांक अनूठे इंसान का हम सभी छात्र जो है वह साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं। सभी छात्र अपनी किताब निकाले। किताब में पृष्ठ क्रमांक 6 नंबर के पन्ने पर जो है वह दिया हुआ है, तो सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में देखें अनूठे इंसान। यहाँ पर सुंदर से दो प्रसंग दिए गए हुए हैं और ये दोनों ही जो प्रसंग है उसका यहाँ पर सुंदर सा वर्णन प्रस्तुत विषयांग में जो है वह आता है। लेकिन उसकी बात करें उससे पहले ब्रैकेट में दी गई हुई प्रसंग वर्णन के बारे में जो जानकारी है सबसे पहले वह पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। सभी छात्र अपनी किताब में 6ठा पेज जो है वह खोले और देखिए सबका ध्यान वह येलो ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसमें किताब में ध्यान दे। इस इकाई में दो प्रसंग है। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। कि यहाँ पर प्रथम प्रसंग जो है वह फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट का वह प्रसंग है। और नेपोलियन बोनापार्ट जब बचपन के थे तब के उनके जीवन के ये प्रसंग जो है वह दिए गए हुए हैं। ये प्रसंग जो है वह सत्य एवं प्रामाणिकता के पथ पर चलने की हमें सीख और प्रेरणा प्रदान करता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। कि जो दूसरा प्रसंग है उस दूसरे प्रसंग में महात्मा गांधी जी देश को आजाद कराने के लिए जब लोगों के पास जो है वह चंदा मांग रहे थे और लोगों के पास जो है वह देश की सहायता के लिए धन जो है वह मांग रहे थे, उन दिनों में केरल के बड़गरा नाम के गांव की एक छोटी सी लड़की कौमुदी जिसने अपनी देशभक्ति का जो परिचय दिया उसका सुंदर वर्णन जो है वह दूसरे प्रसंग में दिया गया हुआ है। तो सच्चे दान की बात और नेपोलियन से सत्य एवं प्रामाणिकता के पथ पर चलने की जो है वह सीख की हमें प्राप्ति हो, यह सुंदर आशय के साथ यह विषयांक जो है वह आपके अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। तो सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में देखे। ऐसा था नेपोलियन। तो कैसा था नेपोलियन, वह बात जो है वह नीचे दी गई हुई है। आइए सभी साथ मिलकर के उसका अभ्यास करते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। नेपोलियन जब आप जितनी उम्र का छोटा सा बच्चा था, लड़का था, तब वह बड़ा ही सत्यवादी था। सत्यवादी किसे कहते थे? तो कि सत्यवादी उसे कहते हैं जो सत्य के पथ पर चलकर सत्य से कभी अपने जीवन में मुंह न मोड़े, उसे सत्यवादी कहा जाता है। तो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। एक दिन की यह बात है, बचपन में नेपोलियन अपनी बहन, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि नेपोलियन की बहन का नाम क्या था। तो नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। तो इलाइजा बहन के साथ नेपोलियन भाई जो है वह आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था। आंख मिचौनी का खेल यानी कैसा खेल? तो कि आंख मिचौनी के खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर सामने वाले को पकड़ने के लिए जो जाता है वह आंख मिचौनी का खेल नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। इलाइजा जो है वह कहीं पर छिप गई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया और अचानक ही हुआ यूं कि नेपोलियन इधर उधर दौड़ रहा था और उस दौड़ते
दौड़ते नेपोलियन ने एक लड़की को जाकर के उसके साथ वह टकरा गया, टक्कर मार दी और लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। और लड़की जो है वह क्या बेचने के लिए, तो कि अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी क्या, तो कि जिसे हम गुजराती में जमरूख कहते हैं। और वह लड़की अमरूद बेचने के लिए फल की टोकरी जो है वह लेकर के वह कहीं जा रही थी। हमारे भावनगर में जो है वह अमरूद सबसे अधिक जो है वह पकते हैं और सबसे अधिक बिकते हैं। और विदेश में भी हमारे भावनगर के अमरूद की जो है वो बड़ी ही डिमांड है। यहाँ पर हमारे भावनगर में आया हुआ सोनगढ़ और आमला जो गांव है वहाँ पर जो अमरूद पकते हैं उनकी डिमांड जो है वह सबसे अधिक, सबसे ज्यादा जो है वह है। तो अमरूद बेचने वाली लड़की के साथ नेपोलियन जाकर के टकरा गया और नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी और नेपोलियन उस लड़की के साथ टकराया। और बाद में हुआ यूं कि नेपोलियन के टकराने से उस लड़की के हाथ में अमरूदों से भरी हुई टोकरी यानी जिसे हम गुजराती में टोपली कहते हैं, तो टोकरी उस लड़की की जो थी वह नीचे जा गिरी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए और नीचे कीचड़ था और कीचड़ के ऊपर सारे के सारे अमरूद उस लड़की के जो है वह जा गिरे और सारे के सारे अमरूद जो है वह खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। अब वह लड़की जो है उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिरे और गंदे हो गए। अब वह लड़की जो है वह कहने लगी कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। वह तो अमरूद बेचने के लिए जा रही थी और उसे चिंता हुई कि सारे अमरूद जो है वह कीचड़ में जाकर गिरे और खराब हो गए हैं, तो अपनी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। और उस वक्त यह घटना को देखकर नेपोलियन के साथ खेल रही छोटी बहन इलाइजा जो है वह कहने लगी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, हमें यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। वह लड़की रो रही थी, उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिरे थे, कीचड़ से गंदे हो गए थे और रोती हुई लड़की कह रही थी, अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी। यह सुनकर नेपोलियन की बहन नेपोलियन को कहने लगी कि भैया चलो यहाँ से अब हम भाग चलते हैं। तब नेपोलियन देखिए, नेपोलियन छोटा है, बच्चा है, तो नादान है, शरारती है और यदि नेपोलियन के भीतर सत्य जागृत जीवंत नहीं होता, सत्य की ज्योत नहीं जलती होती, तो नेपोलियन ने अपनी बहन की बात मानकर वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन ने क्या किया तो देखो आगे, नहीं बहन हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन ने देखो क्या किया, तो कि नेपोलियन अपनी बहन को कहने लगा कि नहीं बहन हमारे कारण ही तो इस लड़की की हानि हुई है, इस लड़की को नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने अपनी जेब यानी जिसे हम गुजराती में खिस्सू कहते हैं, तो जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर जेब में रखे हुए 3 छोटे छोटे जो सिक्के, केवल 3 ही थे, 3 छोटे छोटे सिक्के उसने जो है वह निकाले और उस लड़की के हाथ में थमाकर देकर उसने कहा कि बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। मेरे पास केवल और केवल अभी इस वक्त 3 ही सिक्के मेरे पास बचे हुए हैं। बहन देखिए नेपोलियन में कितने भीतर जो है वह विवेक भरा हुआ है। उस अनजान लड़की को भी वह बहन के संबोधन से संबोधित करता है। सत्यवादी था नेपोलियन, तो नेपोलियन ने 3 सिक्के निकाल कर दिए और कहा कि तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। नेपोलियन को वह लड़की जो है वह कहती है कि इन तुम्हारे दिए गए इन 3 ही सिक्कों से मेरा क्या होगा, मैं घर पर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। वह लड़की रोती हुई कहने लगी और तब नेपोलियन कहता है, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन बड़ी शान और शौकत के साथ जो है वह अपनी बहन को उस लड़की को कहता है कि हम भाई बहन के साथ हमारे घर पर चलो और हमारे घर पर तुम हमारे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें
माँ से पैसे जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरपाई करने के लिए मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। और आगे क्या हुआ देखिए अगले पन्ने पर। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन की बहन जो है वह नेपोलियन को कहने लगी कि नेपोलियन भैया क्या तो कि इस लड़की को यदि हम अपने साथ अपने घर पर ले जाएंगे तो हमारी माँ जो है वह नाराज हो जाएगी, इसीलिए इसे घर पर नहीं ले जाना चाहिए। नेपोलियन नहीं माना, बहन ने तो बार बार मना किया नेपोलियन को कि इसे चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। बाद में वही बहन दूसरी बार नेपोलियन को कहती है कि भैया इसे हमें अपने घर नहीं ले जाना चाहिए वरना हमारी माँ नाराज हो जाएगी। तो नेपोलियन जो है उसने अपनी बहन की बात नहीं मानी, बहन की बात टाल दी और वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। और नेपोलियन ने साहस किया और वह अपनी बहन के साथ उस लड़की को अपने घर अपनी माँ के पास ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से ही इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने घर जाकर अपनी माँ को कहा कि माँ तुम मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे देती है उस पैसे में से ही इस लड़की को अभी पैसे दे दीजिए। और माँ तब कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तब जो है वह नेपोलियन को अपनी माँ जो है नेपोलियन को कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी सच्चाई से बड़ी खुश हुई हूँ, तुम्हारी सच्चाई से मैं प्रभावित हुई हूँ, मगर याद रखो नेपोलियन कि अब मैं तुम्हारे जेब खर्च के लिए पूरे 1 महीने तक 1 भी रुपया जो है वह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तब माँ ने यह कहा, तब नेपोलियन ने क्या किया देखो क्या कहा, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कह दिया, ठीक है माँ कोई बात नहीं, भले तुम मुझे 1 महीने के लिए जेब खर्च के लिए 1 भी पैसा न दो तो चलेगा, लेकिन इसके बदले इस लड़की को मेरे द्वारा मुझसे जो नुकसान हुआ है, मुझसे जो हानि पहुंची है उसे भरपाई करना वह मेरा फर्ज है। ऐसा समझदार, ऐसी सोच वाला, ऐसे दिव्य विचार वाला, ऐसे दिव्य ख्याल वाला, ऐसे दिव्य भव्य ख्यालों वाला नेपोलियन बचपन से ही था। और ठीक है माँ ऐसा नेपोलियन ने हंसते हुए कह दिया। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए और उसकी माँ ने क्या किया तो कि नेपोलियन की जेब खर्च के लिए रखे गए रुपये जो थे उसमें से 2 बड़े रुपये जो है वह निकाल कर उस लड़की की हुई हानि को, नुकसान को पूर्ण करने के लिए 2 बड़े सिक्के दे दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई और वह लड़की को 2 बड़े बड़े सिक्के प्राप्त हो गए और लड़की तो दिल से खुश हुई और लड़की खुशी खुशी अपने घर पर चली गई। और नेपोलियन की यह बात हमें बड़ी ही प्रेरणा जो है वह प्रदान करती है। उसकी बात आगे करते हैं तो नेपोलियन के द्वारा नेपोलियन के घर से 2 बड़े बड़े सिक्के प्राप्त हुए और बाद में वह लड़की खुशी खुशी अपने घर पर लौट गई। और बाद में नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया कि नेपोलियन को जो इलाइजा के साथ, बहन के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था और उस लड़की को उसकी टक्कर हुई और उसके अमरूद खराब हुए, तो उस दिए गए धक्के की सजा तो प्राप्त हुई ही। सजा क्या मिली? क्योंकि पूरे 1 महीने तक उसे जेब खर्च के लिए 1 भी पैसा, 1 भी रुपया जो है वह प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन उसके बदले में नेपोलियन को सत्य के पथ पर चलने के कारण यह सजा जो है वह भुगतने में नेपोलियन को अद्भुत और अद्भुत कहा जाए ऐसा मजा, ऐसा आनंद जो है वह पूरे 1 महीने तक आया था। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। नेपोलियन जब बचपन में आप जितनी उम्र का था तब नेपोलियन को सच्चाई के पथ पर चलने वाला वह इंसान था और साथ ही में बचपन से ही उसके हृदय में
खुद पर, अपने आप पर भरोसा इतना था, दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। देखिए यहाँ पर अपने आप पर भरोसा रखोगे तो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में तुम कभी निष्फल नहीं होगे, असफल नहीं रहोगे। यदि सफलता की सबसे पहला, सबसे प्रथम यदि कोई कदम है तो वह है आत्मविश्वास। अपने आप पर इतना भरोसा करो, अपने आप पर इतना भरोसा करो कि नाकामयाबी नाम का शब्द जो है वह अपने जीवन में, अपने हृदय में कभी जो है वह आए ही। किसी भी मुश्किल में है, किसी भी संकट में है, किसी भी पीड़ा में है, किसी भी प्रकार के दुख में हमारा जीवन, यदि हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम अपने भीतर में आत्मविश्वास की एक ऐसी ज्योत जो सदैव ज्वलंत रखे, कभी उसे बुझने न दे, तो आई हुई दिक्कत में, आई हुई मुश्किल से परमात्मा हमें हर हमेश बाहर निकालेंगे। नेपोलियन की यह छोटी सी बात ऐसा था, नेपोलियन, उस बात से हमें क्या सीखना है, हमें अपने जीवन में कौन सा गुण जो है वह उतारना है, वह हमें सीखना है, वह हमें समझना है कि हमसे किसी भी प्रकार से किसी को भी यदि नुकसान होता है, हानि होती है, तो क्षमा के भाव के साथ उसकी माफी मांगे और बाद में सामने वाले को हमसे जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उसका हम यथाशक्ति भुगतान करें, यथाशक्ति भुगतान करें, ताकि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान जो है वह कायम बनी रहे। यदि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान की आप वजह बनते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा अविरत आप पर जो है वह बनी ही रहती है। तो नेपोलियन ने उस लड़की के अमृत जो है वह कीचड़ में जो है वह जा गिरे, वह तो गलती से ही टकराया था और उस लड़की, अमृत बेचने वाली उस लड़की के अमृत कीचड़ में जाकर जा गिरे और गंदे हो गए थे। और नेपोलियन ने उस लड़की को 3 सिक्के दे दिए। नेपोलियन की बहन तो उसे मना कर रही थी कि चलो भैया हम यहाँ से भाग चले, लेकिन नेपोलियन नहीं माना और नेपोलियन ने जो है वह बदले में 3 छोटे छोटे सिक्के दिए। फिर भी वह लड़की रो ही रही थी और वह कहने लगी थी कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। नेपोलियन की गलती की सजा उस अमृत बेचने वाली लड़की को भुगतनी है। यह विचार नेपोलियन को दुखी कर रहा था, इसीलिए वह अपनी बहन के साथ उस लड़की को घर पर ले जाने की बात करता है। तब उसकी बहन तो उसे मना ही करती है, लेकिन नेपोलियन उसे अपने घर पर ले गया और माँ के सामने जाकर सारी बात जो है उसने कही रखी। और बदले में बाद में तो कि नेपोलियन की माँ ने बड़े बड़े 2 सिक्के जो है वह तो दे दिए उस लड़की को, और बाद में तो कि लड़की को सिक्के तो मिल गए, 2 बड़े सिक्के प्राप्त हो जाने के बाद लड़की खुश हुई और बाद में नेपोलियन को 1 महीने के लिए जेब खर्च के लिए 1 भी पैसा जो है वह प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी नेपोलियन ने बड़ी ही जिंदा दिली के साथ अपने सत्य और प्रामाणिकता को उसने बचपन से जो है वह छोड़ा नहीं था और बचपन से ही नेपोलियन सत्य और प्रामाणिकता के पथ पर चलने वाला अनूठा इंसान था। अनूठा यानी जो अनोखा हो, वैसा हो, उसे अनूठा कहा जाता है। आगे दूसरी सुंदर सी बात है सच्चा दान। दान तो देते ही है, लेकिन सच्चा दान किसे कहते हैं, वह बात एक छोटी सी लड़की ने जो है वह यहाँ पर हमारे सामने प्रसंग वर्णन में जो की है वह यहाँ पर रखी गई हुई है। यह बात हम देखते हैं। मालबार, केरल, ब्रैकेट में शब्द दिया गया हुआ है केरल। मालबार कहाँ पर आया हुआ है, तो कि केरल में आया हुआ है। मालबार की बात है, वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। कि मालबार केरल के बड़गरा नाम का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक सभा का जो है वह सुंदर सा छोटा सा आयोजन जो है वह किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी कि गांधी जी, पूज्य महात्मा गांधी जो
सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया था, वह महात्मा गांधी, पूज्य मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू के नाम से पहचानते हैं। बापू जो है वह तो के मालवार केरल के बड़गरा नाम के गांव में गए हुए हैं और वहां पर गांधी जी जो है वह गांव के लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं और सभा का वहां पर बड़ा सुंदर सा आयोजन है और सभा में पुरुष भी आए हुए हैं और महिलाएं भी आई हुई है। तो सभा में उपस्थित जो महिलाएं थी, बहनें थी, उसे गांधी जी संबोधित करते हुए कहने लगे कि भाषण में सभा में उपस्थित बहनों से गांधी जी ने जेवरों की भीख मांगी। बापू को देश को आजाद कराना था। देश को आजाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा के बल पर जो आंदोलन चल रहा था, उन आंदोलन के लिए बापू को जो है वह पैसों की आवश्यकता थी, जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सभा में आई हुई बहनों से जेवर, जेवर यानी क्या, तो क्या आभूषण जिसे हम कहते हैं, लिखते हैं वह शब्द जेवर यानी आभूषण, आभूषण यानी गहने, गहने यानी अलंकार, गुजराती में कहिए तो घरेना। तो यहाँ पर सभा में आई हुई बहनों से गांधी जी के द्वारा जो है वो भीख मांगी गई और कहा गया कि अभी आंदोलन के लिए कुछ चंदा की आवश्यकता है, जेवरों की, धन की आवश्यकता है। तो बहनों से भीख मांगते हुए बापू कहने लगे कि हमें आप जो है वह, आपने जो कीमती गहने स्वर्ण और चांदी के जो पहने हुए हैं वह हमें दे दीजिए। और बहुत सी वस्तुएं भेंट में, पीछे पन्ना पलटिए, बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली और गांधी जी के द्वारा भीख मांगी गई। देखिए, दूसरों के हित के लिए मांगना, वह कार्य करने वाले थे बापू, और बापू के लिए ये बड़ा सुंदर सा शब्द जो है वह भीख का दिया गया हुआ है। और देश को आजाद कराने के लिए स्वाधीनता का संग्राम चल रहा था, उसमें अनन्य प्रदान करने वाले देश के कोई महान शासक, महान नेता, महान व्यक्ति यदि कोई है तो वह पूज्य महात्मा गांधी है। और केवल सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर जो देश को आजाद कराने के लिए निकले थे और पूरा भारतवर्ष जिनके साथ था, वह महात्मा गांधी ने जब भीख मांगी, बहनों से जेवरों की भीख मांगी, तब सभा में जो उपस्थित स्त्री और पुरुष थे उन्होंने बहुत सी चीज, वस्तुएं जो है वह बापू को भेंट में जो है वह देना शुरू किया। और उस बीच में क्या हुआ, आगे देखिए। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलामी करने लगे। भाषण जो है वह पूरा हुआ और भाषण के समाप्त हो जाने के बाद गांधी जी जो है वे गांधी जी जो थे वे वहां पर उस चीज वस्तुओं की वहां पर नीलामी करने लगे थे। नीलामी करना यानी क्या, तो कि जिसे गुजराती में हम हराजी कहते हैं। हराजी यानी किसी एक चीज को दिखा करके कहा जाए कि भाई चलो ये मार्कर जो है वह बेचनी है, सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वे मार्कर देख करके कहते हैं कि ये मार्कर जो है वह जापान से खरीदी गई हुई है। भारतीय रुपीस में देखा जाए तो इस मार्कर की कीमत जो है वह वहाँ पर भारत के रुपयों में देखा जाए तो ये मार्कर 100 रुपये से खरीदी गई हुई है। आज मुझे ये मार्कर बेचनी है, ये इस मार्कर के द्वारा, इस मार्कर से तो के
XYZ महान व्यक्ति ने जो है वो लिखा हुआ था, मान लीजिए कि भाविन सर, तो कि ये मार्कर जो है वो भाविन सर ने लिखी हुई है, 100 रुपये से जापान से खरीदी गई हुई थी, कितने में खरीदनी है, तो बोली लगाई जाती है कि भाई 101 रुपये, बाद में कहीं और से दूसरा बोलता है कि भाई 121 रुपये, और तीसरा जो है वो बोलता है कि 140 रुपये। तो जिसने 140 रुपये जो है वह कहा, उसे यह मार्कर दी जाती है और 140 रुपये बदले में यहाँ पर मुझे मिलता है, तो उसे जिसे हम हराजी कहते हैं। यहाँ पर गांधी जी वहाँ पर नीलामी करने लगे थे और जो कीमती चीज वस्तुएं थी उसकी नीलामी का काम पूज्य स्वयं बापू कर रहे थे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई और 16 साल की छोटी सी एक कन्या, एक छोटी सी लड़की धीरे से मंच यानी जिसे हम स्टेज कहते हैं, मंच पर वह लड़की जो है वह चढ़ आई और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? कि वह लड़की स्टेज पर मंच पर गई और मंच पर बापू के पास पहुंचकर वह 16 साल की छोटी सी लड़की ने, कन्या ने अपने हाथ में जो सोने की चूड़ी पहनी हुई थी वह निकालकर गांधी जी को दी और बाद में वह लड़की कहने लगी कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी को प्रश्न पूछती है और बदले में एक सोने की चूड़ी देती है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार ली कि गांधी जी तो हस्ताक्षर कर रहे थे। महान व्यक्ति जो होते हैं उनके ऑटोग्राफ्स जिसे हम कहते हैं, हस्ताक्षर जिसे हम कहते हैं, वह लिए जाते हैं। तो वह 16 साल की वह छोटी सी लड़की एक हाथ की चूड़ी निकाल कर बापू को देती है और गांधी जी को कहती है कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? बाद में गांधी जी तो हस्ताक्षर कर ही रहे थे, उसे एक जो है वह सोने की चूड़ी जो है उस लड़की के द्वारा मिली थी। तब वह लड़की दूसरे हाथ की अपनी चूड़ी जो है वह उतार देती है और कहती है, यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। कि गांधी जी उस लड़की को जो है वह कहते हैं कि अरे पगली तुम्हें, तो कि अरे पगली तुम्हें दूसरी दोनों ही चूड़ियां जो है वह देने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और मैं तुम्हें तुम्हारी एक ही चूड़ी के बदले हस्ताक्षर जो है वह कर दूंगा। और गांधी जी यह कह रहे थे, उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी कह रहे थे कि तुम्हारी एक ही चूड़ी के बदले में तुम्हें हस्ताक्षर दे सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे दूसरे हाथ की दूसरी चूड़ी देने की भी आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ये कह रहे थे, तब उस लड़की ने अपने गले का स्वर्णहार, गले में पहना हुआ सोने का जो हार था जिसे हम सोने की चेन कहते हैं, वह उतार लिया और गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? लड़की ने एक हाथ की चूड़ी, दूसरे हाथ की सोने की चूड़ी, गले का स्वर्ण हार, सोने का जो चेन है, सुवर्ण का हार है, वह भी निकाल कर बापू को दे दिया। तो गांधी जी उस लड़की को पूछते हैं कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना, कि तुम मुझे अभी ये सब दे रही हो, तो तुमने अपने माताजी और पिताजी से पहले आज्ञा तो ली है ना कि मैं बापू की सभा में जा रही और ये सारी सोने के जो आभूषण है वह मैं दे दूंगी, इसके बदले में तुमने पहले आज्ञा ली है या ऐसे ही दे रही हो? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए और बिना ही कुछ कहे, बिना ही कुछ बोले उस लड़की ने क्या किया, तो उस लड़की ने अपने कानों में जो रत्न जड़ित बूंदे पहनी हुई थी, कानना घरेणु जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ उसे रत्न जड़ित बूंदे, यहाँ पर हिंदी में वह शब्द जो है वह लिखा गया हुआ है। तो गुजराती में जेने काननी बूटी कहिए છીએ આપણે, तो रत्न जड़ित बूंदे जो कौमुदी ने अपने कानों में पहनी हुई थी, वह बूंदे जो है वह निकाल कर गांधी जी को उस लड़की ने दे दी और कुछ भी बोले बगैर, बापू केवल बोल रहे हैं लेकिन वह 16 साल की लड़की जो है वह कुछ बोलती नहीं है। और बाद में तो गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? तब वह लड़की जो है वह अपने कुछ उत्तर दिए बगैर
रत्न जड़ित बूंदे जो है वह निकाल देती है कि तुमने इन आभूषणों के बदले अपने माता पिता की आज्ञा तो ले ली है ना। गांधी जी ने फिर से एक बार दोबारा जो है वह पूछा कि तुम जो है वह ये सारे गहने एक एक करके मुझे दे रही हो, तो तुमने अपने माता और पिताजी से आज्ञा तो ले ली है या नहीं। तब कौमुदी कुछ उत्तर देती, इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। देखिए, जैसे गुजराती में कहावत है કે જેવા બાપ એવા બેટા અને જેવા વડ એવા ટેટા અને બાપ એવા બેટા કે બેટી, કે જેવા વડલો હોય એવા એના ફળ હોય, જેવા માતા પિતા હોય એવા એના સંતાન હોય। तो ये बात यहाँ बराबर लागू पड़े छे। तो यहाँ पर जो है वह किसी ने आकर गांधी जी को कहा, गांधी जी बार बार उस लड़की को पूछ रहे हैं कि तुम एक एक करके सारे आभूषण गहने जो है वह तुम मुझे देती जा रही हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता, तुमने यह आज्ञा तो ली है ना। तब किसी ने आकर के जो है वह गांधी जी को बताया, कहा कि इसके पिता तो यहीं पर है और मानपत्रों की नीलामी में वह बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। मानपत्र जो आपके द्वारा लिखे गए हुए हैं, मानपत्र यानी आदर से लिखा गया पत्र, जिसे क्या कहते हैं, मानपत्र। आइए साथ में लिख लेते हैं वह शब्द। आदर से लिखा गया पत्र, जिसे कहा जाता है मानपत्र। तो किसी ने आकर गांधी जी को कहा कि ये लड़की भले आपको एक के बाद एक सारे ये गहने देती जा रही है, लेकिन इसके पिता तो यहीं पर है, और तो कि वो मानपत्रों की नीलामी करके बोली लगा करके आपकी मदद कर रहे हैं कि सभा में आपको जो ये कीमती चीज वस्तुएं प्राप्त हुई उनकी नीलामी हो रही है, और साथ ही में मानपत्र आदर से लिखे गए जो पत्र है और उन पत्रों की बोली लगाकर जो नीलामी हो रही है, उस नीलामी में आपकी मदद करने का काम इसी लड़की के पिताजी जो है वह कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी उस छोटी सी 16 साल की लड़की को कहते हैं, बापू कि बेटा तुम्हें यह मालूम तो होगा कि तुम ये एक एक करके तुमने अपने हाथ की एक चूड़ी, दूसरी चूड़ी, गोले का स्वर्ण हार, रत्न जड़ित बूंदे जो तुमने कान में पहनी हुई है, ये एक एक करके तुम ये सभी गहने अपने देती जा रही हो, और ये गहने दे देने के बाद तुम फिर से जो है वह नए गहने नहीं बनवा सकोगी। इस बात से तुम्हें इसकी जानकारी तो है ना, तुम्हें इसका ज्ञान तो है ना, ये बात तुम जानती तो हो ना। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक जो है वह स्वीकार कर ली, कि कौमुदी ने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ बापू, भले मैं आगे चलकर नए गहने ना बनवा सकूं, भले मेरे पास जो है वह इस प्रकार के गहने ना आए, फिर भी ये सारे गहने तो मैंने आपको दे दिए सो दे दिए। और गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी को भी उस लड़की के लिए कुछ लिखने की जो है वह इच्छा हो गई, और उस लड़की के बर्ताव को देखकर गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए, और गांधी जी ने हस्ताक्षर तो कर ही दिए, सिग्नेचर तो कर ही दिया, लेकिन एक सुंदर सा वाक्य, छोटा सा एक ही वाक्य जो है वह बापू ने लिखा, पूरे के पूरे इस प्रसंग वर्णन का वह हार्द है, सार है। बापू ने लिखा उस 16 साल की लड़की के लिए, और क्या लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बड़ी सुंदर बात जो है वह बापू ने यहाँ पर लिख दी कि तुमने ये सारे आभूषण एक एक करके जो है वह दे दिए, लेकिन उन आभूषणों की अपेक्षा में देखा जाए तो तुमने जो त्याग किया है, तुमने गहनों का जो त्याग किया है वह ही सच्चा आभूषण है। लेकिन त्याग यानी क्या?
त्याग यानी समर्पण, समर्पण यानी छोड़ देना। किसी के किसी का अच्छा, किसी के साथ जो है वह हमसे कभी बुरा न हो, लेकिन किसी के साथ हमसे जितना हो सके उतनी अच्छाई करके हम कुछ छोड़ देते हैं, कुछ दे देते हैं, उस भाव को समर्पण का भाव, त्याग का महान भाव जो है वह कहा जाता है। तो उस लड़की को बापू ने लिख दिया कि तुम्हारी इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। और बाद में कहा है, सच है देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और सच यही बात है कि देश प्रेम से बढ़कर अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। यदि हमें देश को महान बनाना है और मेरा भारत महान, इस भावना को अपने हृदय में सदैव के लिए ज्वलंत रखना है, तो देश के लिए कुछ त्याग की भावना जो है वह होनी चाहिए। और यदि ऐसा होगा, ऐसे ख्यालात भारत के सभी भारतीयों के दिलो दिमाग में जो है वह छा जाएंगे, तब जाकर के मेरा भारत महान जो है वह बनेगा। और इसीलिए यहाँ पर पाठ में अंत में कहा गया है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरा यह प्रसंग वर्णन गांधी जी को लेकर, कोवलूदी नाम की 16 साल की कन्या मालबार जो केरल में आया हुआ है, वहां पर बड़गरा नाम का एक छोटा सा गांव, और उस गांव में गांधी जी की सभा का आयोजन हुआ। सभा में आई हुई बहनों से गांधी जी के द्वारा जेवरों की भीख मांगी गई। बहुत सी कीमती चीज वस्तुएं प्राप्त हुई और बाद में गांधी जी उनकी नीलामी करने लगे। और उस वक्त 16 साल की एक छोटी सी लड़की जो है वह स्टेज पर, मंच पर आई और गांधी जी के पास हस्ताक्षर मांगती है और बदले में अपने एक हाथ की सोने की चूड़ी देती है। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे, तब वह लड़की अपने दूसरे हाथ की चूड़ी देती है और गांधी जी जो है वह कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे एक ही चूड़ी के बदले तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा, दूसरी चूड़ी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन तब उस लड़की ने, गांधी जी यह कह रहे थे, तब उस लड़की ने, 16 साल की उस कौमुदी नाम की लड़की ने अपने गले का स्वर्ण हार निकाल कर बापू के सामने रख दिया। तब गांधी जी जो है वह कहते हैं कि बेटा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है या नहीं? गांधी जी यह कह ही रहे थे, तब उस लड़की ने अपने कान के जो गहने थे, जिसे हम गुजराती में बूटी कहते हैं, जिसे हिंदी में यहाँ पर रत्न जड़ित बूंदे कही गई हुई है, रत्न जड़ित बूंदे निकाल कर बापू के सामने जो है वह रख दी। तब गांधी जी कहते हैं कि बेटा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है या नहीं? तब कोई आकर के कहता है कि गांधी जी, बापू, इसके पिता यही है जो यहाँ पर आपके द्वारा लिखे गए मान पत्रों की नीलामी में बोलियां लगा कर आपकी मदद कर रहे हैं। और गांधी जी ने जो है इसके सच्चे दान को स्वीकृत किया। लेकिन गांधी जी फिर भी उस लड़की को एक बार कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मालूम है कि एक बार तुमने ये सारे गहने मुझे दे दिए, बाद में तुम फिर से इसे नए नहीं बनवा सकोगी। तब कौमुदी ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया कि हाँ, भले ही बापू मैं दूसरी बार ऐसे ये सारे गहने न बनवा सकूं, लेकिन ये तो आप ही ले जाए। ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण उस लड़की का देख गांधी जी ने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर की और बाद में लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तो सत्य, प्रेम, करुणा के महान भाव, समर्पण के भाव, त्याग के भाव, दया के भाव, करुणा के भाव, मानवता के भाव, ऐसे महान भावों को हम भी इस उम्र से ही अपने हृदय में जो है वह ज्वलंत करें और हमसे जितना हो सके उतना दूसरों का सुख हो, कल्याण हो, मंगल हो, यह भावना जो है वह हर हमेशा अपने दिलो दिमाग में कायम रखें। तब जाकर के वसुदेव कुटुंबकम की भावना, वसुदेव कुटुंबकम की बात जो है वह सच होगी, सार्थक होगी। और बड़ी सुंदर सी ये अनूठे इंसान की बात, प्रसंग वर्णन जो है वह यहाँ पर पूरा होता है। आज लेक्चर में अगले विषयांक के साथ, नई बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।